Yes, today we are going to study about the new topic known as the clindamycin, and in which we see about their mechanism of action and their pharmacokinetics and their side effect. And it is a very small topic, and we can see how it these drugs mainly works on the bacterial ribosome, or how it can inhibit the protein synthesis. And you can also see like. It is normally linked with the erythromycin, in which we see the erythromycin mainly acts on the 50S ribosome, and this clindamycin also acts on the 50S ribosome and inhibit what peptidyl transferase enzyme, and responsible for what there is no responsible for the no translation. And if there is no translation, there will be no protein synthesis can be happened, and if there is no any protein synthesis, there will be no any pathogenic effect of that particular bacteria can be seen. Like we see in this like mechanism of action, you can see it normally bind with what 50s subunit of ribosome, and if it bind to the 50s subunit of ribosome or transferase site, it does not allow what protein, it does not allow translation of the protein. And if there is no any translation, there will be no any protein synthesis. No translation, no protein synthesis. And if there is no protein synthesis, there will be no pathogenic effect of that pathogenic effect of that particular bacteria can be seen. And in which we see some like you can say that have you heard about the pelvic abscess or any intraperitoneal infections? Like क्या होता है कि इसमें कि जो pelvic abscess है, अच्छा intraperitoneal infection है, in this condition what the supply of O2 is less, or there is no any supply of O2 during this condition, and which increase the chances for the bacteria to grow during this condition. And if their bacteria can grow, they can cause what inflammation and infection of that particular region, and this lead to the serious problem or the complication for the further management, and management can be difficult for that disease. And so for that this clindamycin is the best or the best option for the treatment of that type of bacterial infection, like in pelvic abscess or intraperitoneal infection. like इसमें हम जैसे हम देख सकते हैं कि नॉर्मली जो है कि जो सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ कहाँ ये जो क्लिंडामाइसिन है वो वर्क कहाँ करता है। तो ये नॉर्मली जो एनएरोबिक्स बैक्टीरिया हैं उस पर ये ज़्यादा अच्छी तरह से ये वर्क करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये एनएरोबिक एनएरोबिक बैक्टीरिया में ये ज़्यादा वर्क करता है। ठीक, फिर इसके बाद से कह सकते हैं कि ये नॉर्मली आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाई में भी ये वर्क करता है, बहुत अच्छा तरह से ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई में वर्क करता है। फिर सेवरल पैरासाइट्स इन्फेक्शन पे भी ये वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले अगर कोई इन्फेक्शन होता है न्यूमोसिस्टिस द्वारा, तो इसमें ये अच्छे तरह से वर्क करेगा। लाइक कभी कभी ये क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये अच्छा तरह से वर्क करता है। और मान लीजिए कि अगर कोई जैसे पर्सन है, अगर उसको टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन है, तो इसमें भी ये बेटर ऑप्शन होता है क्लिंडामाइसिन को यूज करें, और उससे हम लोग मतलब उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी ये अच्छे तरह से यूज होता है। बात आती है कि हम इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि ये जो क्लिंडामाइसिन है वो नॉर्मली जो वर्क करता है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया पे ये बहुत अच्छा तरह से ये वर्क करता है। और एनएरोबिक जो बताए थे कि एनएरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ज़्यादा ये ग्रोथ करता है, तो जहाँ पे मान लीजिए कि अगर पेल्विक अब्सेस है, चाहे इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शन है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो उस पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और जब वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का भी जो है प्रोसेस वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस दौरान उसमें हम अगर ये जो मेडिसिन यूज करते हैं जो क्लिंडामाइसिन, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक,
अब जैसे देखते हैं कि इसमें हम कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसके पहले भी हम पढ़े थे कि बहुत सारे जैसे ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़े थे कि उसमें क्या आता है कि जब अगर ग्राम निगेटिव वेसिलाई है उस पर ये अच्छा तरह से वर्क करता है। ठीक, जैसे इसमें देखिए जैसे ये है एरोबिक ग्राम निगेटिव वेसिलाई। तो इसको कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कहाँ कहाँ जैसे ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, कि कहाँ ये वर्क नहीं करता है। तो हम बस 4-5 ऐसे याद रखना है हमको। तो इसके लिए MRCS हम ट्रिक निकाले हैं। MRCS एक एग्ज़ाम है, ठीक है, लंदन के लिए। और इसमें बस इसी के हिसाब से थोड़ा ये इसमें ट्रिक निकालते हैं। जैसे M फॉर होता है माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा मतलब अटिपिकल न्यूमोनिया कैन बी हैपेंड विथ दिस माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ठीक, इसके बाद से आता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया में भी ये क्या करता है, अच्छा तरह से वर्क नहीं कर, इस पे वर्क ही नहीं करता है। ठीक, ग्राम निगेटिव बेसिलाई पे ये नो वर्क। ठीक, सी फॉर क्लैमिडिया। क्लैमिडियल इन्फेक्शन पे ये भी वर्क नहीं करता है। और सेवरल स्पायरोचिट्स पे भी ये वर्क नहीं करता है। ठीक, तो अभी तक हम देखें कि ये जो क्लिंडामाइसिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर इसके बाद से ये कहाँ उसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ मतलब वो इफेक्टिव इसकी इफेक्टिविटी शो नहीं होगी। एंड 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 लास्ट वी सी हाउ इट नॉर्मली लिंक्ड विथ इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन में क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्लिंडामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर होता है। और दोनों ये जो वर्क करते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, 50S राइबोसोम पे। तो मानिए कि ये अगर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम किसी पेशेंट को अगर हम इरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, तो अगर उसमें इरिथ्रोमाइसिन अगर रेजिस्टिविटी आ रही है, ठीक है, तो उस दौरान अगर हम मतलब इरिथ्रोमाइसिन को बंद करके अगर क्लिंडामाइसिन देना चाहें तो क्लिंडामाइसिन भी उसमें मतलब अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा। कारण क्या है, दोनों एक तरह से हम कह सकते, अगर मान लीजिए कि अगर वो क्रॉस एलर्जी शो कर रहा है चाहे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो सेम वही फीचर्स क्लिंडामाइसिन भी उसमें शो करेगा, वो भी क्रॉस एलर्जी शो करेगा। जैसे हम लोग पेनिसिलिन में पढ़े थे कि अगर एक पेनिसिलिन अगर क्रॉस एलर्जी शो करता है, अगर एक पेनिसिलिन अगर कोई एलर्जी शो करता है तो सारे जितने भी पेनिसिलिन का ग्रुप है बीटा लैक्टम्स वाला में, ठीक है, वो मैक्सिमम जैसे कि मोनोबैक्टम्स को छोड़ दिया जाए तो वो सब क्रॉस एलर्जी शो करते हैं। मेनली हम ये पेनिसिलिन के बारे में पढ़े थे। ठीक, ऐसे ही इरिथ्रोमाइसिन में है, इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन का, अगर इरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है तो क्लिंडामाइसिन भी रेजिस्टेंस होगा। अगर इरिथ्रोमाइसिन क्या है, अगर वो भी कोई मतलब साइड इफेक्ट शो करता है तो वो भी क्लिंडामाइसिन भी उसी की तरह साइड इफेक्ट शो करेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं कि ये ज़्यादातर एक और कह सकते हैं कि ये मतलब कहाँ इफेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कह दिए, पैरासाइट्स में कह दिए। और बहुत एक और कह सकते हैं कि ये जो अच्छे तरह से मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया है जैसे कि पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, तो उसमें भी ये अच्छी तरह से वर्क करता है। लेकिन एक चीज़ इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें कहाँ और वर्क नहीं करता है, तो MRSA में ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, नो वर्क इन MRSA, नो वर्क। MRSA में ये अच्छा तरह से ये वर्क ही नहीं कर पाता है। ठीक है, और सबसे अच्छा हम तो बताए हैं कि ग्राम निगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में ये अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में ये ज़्यादा वर्क करता है एनारोबिक बैक्टीरिया में। और एनारोबिक बैक्टीरिया में मान लीजिए कि अगर किसी तरह से जैसे बैक्टीरिया फ्रैजिलिस का अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे क्लिंडामाइसिन। अब कुछ इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए हम ये देखें कि देखिए क्या होता है कि इसको हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं ओरल। ठीक है, ओरल ऑब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छे तरह से ओरली एब्जॉर्ब होता है। लिख लीजिए, ओरल एब्जॉर्प्शन, ओरली अच्छा से एब्जॉर्ब होता है। और अच्छी तरह से ये क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। और ये मेनली डिस्ट्रीब्यूट जैसे कि बोन है चाहे सॉफ्ट टिश्यू का अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो बोन का इन्फेक्शन है चाहे सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश कि अगर
ये जो ब्रेन है, चाहे ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल बना रहे हैं कि जैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ये क्रॉस नहीं कर पाता है। जब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा तो कोई भी अगर मान लीजिए कि ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है चाहे इसके चलते, तो उसमें क्लिंडामाइसिन अच्छी तरह से ये वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को, और चाहे सीएसएफ में भी ये क्रॉस नहीं कर पाता, सीएसएफ में भी ये अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से ही क्रॉस नहीं हो पाता। लेकिन मान लीजिए कि अगर बोन है और चाहे उसके सराउंडिंग जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो इसमें ये अच्छे तरह से ये वर्क करेगा, वर्क इफिशिएंटली, इसमें बहुत अच्छा तरह से ये वर्क करेगा। ठीक, ओरली एब्जॉर्ब होता है। इसका बताएंगे कुछ आईवी प्रिपरेशन भी है, लेकिन आईवी प्रिपरेशन अगर देते हैं तो आईवी प्रिपरेशन में क्या है कि उसके साइड इफेक्ट है कि मान लीजिए उसमें ज़्यादा चांसेस होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर 90 to 95% मतलब हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, ओरली इस ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कि अच्छी तरह से तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक और भी चीज़ हम कहें कि ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्रेन में इसकी थेरेपेटिक इफेक्ट कोई ये शो नहीं करता है। और सबसे अच्छा अगर बोन और सॉफ्ट टिश्यू के लिए है ये मेडिसिन बहुत बेस्ट होता है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है। और कह सकते हैं कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे ये मेडिसिन देते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका जो डिपोजिशन होता है और इस मतलब इसका एक्यूमुलेशन जो होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स है और जो मैक्रोफेज है इसको ज़्यादा तरह से अपने में एक्यूमुलेट कर रहते हैं और इसके बाद से इसका धीरे धीरे और भी फंक्शन होता है, ठीक। और इसीलिए इसको कहते हैं ये जो है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में भी ये अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं एक्यूमुलेट हो सकते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज में। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये नॉर्मली क्या होता है कि ये ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है, लीवर में ये मेटाबोलाइज होगा। और जब लीवर में मेटाबोलाइज होगा और बाइल्स के थ्रू ये जैसे बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होता है कि ये जो ड्रग्स है वो जो मतलब मेटाबोलाइज तो लीवर में हुआ, लेकिन इसका जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होता है, किडनी के थ्रू होता है और यूरिन के थ्रू ये बाहर फिर ये निकल आता है। और मैक्सिमम क्या होता है ये क्लिंडामाइसिन अनचेंज फॉर्म में ही ज़्यादातर ये मतलब कुछ पोर्शन अनचेंज फॉर्म में भी निकल जाता है और ज़्यादा इसमें मेटाबोलाइज होते हैं और मेटाबोलाइज होकर फिर अपने यूरिन के रास्ते निकलते हैं, कुछ अमाउंट में मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। और लेकिन इस चीज़ के लिए हम क्या होना है कि इस ड्रग्स को हम सबसे पहले अगर हमें देना है तो उसमें क्या होता है कि हम पहले लीवर और किडनी का भी हमें जांच करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर लीवर में कोई फंक्शन लीवर डिसफंक्शन है तो वो अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। और चाहे हम कह सकते हैं कि अगर किडनी में अगर नॉन फंक्शनल है, चाहे किडनी क्या कर रहा है कि कोई डिसफंक्शन है, किडनी में डिसफंक्शन चाहे किडनी फेल्योर है, तो इसमें ये जो ड्रग्स है जब वो मेटाबोलाइज होकर जब बाहर नहीं निकलेगा तो इसकी क्या हो जाएगी साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी जो नॉर्मल टॉक्सिसिटी है वो शो करने लगेगा। और इसकी टॉक्सिसिटी से जो साइड इफ़ेक्ट जो आने वाले हैं वो क्या है कि समझ सकते हैं कि उससे क्या एडवर्स इफेक्ट होगा अगर ये मेडिसिन जो हमारे बॉडी में अगर ज़्यादातर एक्यूमुलेट रहता है, ज़्यादातर अगर अमाउंट इसका अगर वो टॉक्सिक लेवल पे अगर इंक्रीज होता है तो ये नॉर्मली आपको शो करता है रैसेस शो करेंगे, रैसेस हो गए। फिर इसके बाद से हम कह सकते हैं कि ये मेनली इसको कहते हैं अर्टिकेरिया, ये शो करते हैं अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं ज़्यादातर ये एब्डोमिनल पेन के कारण भी बनाते हैं। और लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो होता है स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस कैन बी हैपन। क्या होता है सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, मान लीजिए कि जैसे इस हम ड्रग्स को लेते हैं तो ये नॉर्मली क्या करता है कि अगर वो जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको भी डैमेज करता है और
इंक्रीज कर देता है सुपर इन्फेक्शन, मतलब जो मान लीजिए क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट बैक्टीरिया है उसकी सुपर इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है। अब वो जो ससेप्टेबल हो जाता है, और इस ड्रग्स के कारण क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल है वो इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगता है, और जब इसका ग्रोथ होगा सुपर इन्फेक्शन होगा तो फिर ये क्या करेगा, जो कोलोन है और चाहे जो भी इंटेस्टाइनल पार्ट है उसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। और स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस अगर ऐसा हुआ है तो इसके ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पेशेंट जब आएगा तो उसको हम प्रिस्क्राइब क्या कर देंगे, हम लोग क्या दे देंगे, मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं। ओरल मेट्रोनिडाजोल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या है कि ओरल जो मेट्रोनिडाजोल है वो उसका ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, मतलब उसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिम्टोमेटिक और बस ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हम उसको दे रहे हैं और कुछ उससे रिलीफ मिले। लेकिन क्या है, इसका अगर ड्रग ऑफ चॉइस बात करते हैं तो उसका मेन ड्रग ऑफ चॉइस है वेंकोमाइसिन। ठीक, मेनली हम लोग वेंकोमाइसिन के बारे में इसके पहले भी पढ़े हैं, और वेंकोमाइसिन के ऊपर एक और इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा जो अगला का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आने का चांसेस है। ठीक है, और लेकिन क्या है कि एक और चीज़ कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसके पहले बताए थे कि अगर इस ड्रग्स को हम क्या करते हैं, अगर आईवी रूट से देते हैं, ठीक है, तो बताए थे अगर आईवी रूट से देते हैं तो जो चांसेस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का जो चांसेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर प्रीफर कैसे करते हैं, ओरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरी तरह से कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है। ठीक, और कैसे ये भी क्या होता है कि किडनी से कैसे एक्सक्रीट कहाँ से होता है, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये सब छोटा सा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।